My dear friend, I really welcome you in the speaknowenglish.com. And this speaknowenglish.com can change your speaking language of English. For example, now you are speaking in mother tongue of your Marathi, right? So if you want to become Marathi to Hindi or Hindi to English, so as Marathi is the language, similarly Hindi is the also language, right? Similarly Gujarati is the also language. So what we do, our mother tongue is not English. So always what we do, we translate our thought in English. So now we are in the second class, right? We are in the today second class. So on the first class we have been studied what is grammar and types of grammar. How many parts of grammar? So how many parts of grammar? See? There are five types of grammar. There are 5 parts of grammar. What is? Orthography, etymology, syntax, punctuation, prosody. So in orthography we study about alphabets and letters. There are 26 alphabets in English called orthography. इस भाग में हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ते हैं और अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 अल्फाबेट्स है जिसे हम वर्ण विचार कहते हैं. एंड देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट्स, vowels and consonants. Vowels is A, E, I, O, U and consonant is 21 apart from the vowels, right? Yes. Now similarly I have spoken you in that day कि vowels के जो उच्चारण है उसके साथ में हमें हिंदी समझना चाहिए. तो जैसे इंग्लिश में 5 vowel होता है उसी तरह से इंग्लिश में कितना होता है? 12 vowels होता है. अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ. तो जो भी चीजें इस चीज से स्टार्ट होगा उसके पहले हम ए और एन लगाते हैं. ये आर्टिकल में आगे जाके पढ़ेंगे, बट हमें स्वर और व्यंजन समझना चाहिए. वॉवेल्स को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. और कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, राइट? सो पहला क्या था? ऑर्थोग्राफी. दूसरा क्या है? Etymology. What we study in etymology? In this part we study about word and words. So a combination of alphabets called word, right? जो अल्फाबेट्स के जुड़ के बनता है, a group of alphabets called words, right? Yes. So for example, if you are studying in anything like A is the alphabet, and if I are adding A double P L E, apple is a word. So similarly third is what? Syntax. So in this part we study about sentence and sentences, right? So a group of words called sentences, right? Yes. So first is orthography, second is etymology, third is syntax, fourth is punctuation. How we can write ahead? With the help of comma, full stop, dash, slash, right? And what is the fifth? Fifth is the prosody. In prosody we study about stanza, paragraph, sort of a story, 2, 3, 4, 5 chapter, and a combination of 4, 5, 10 chapter is the book. So this is the all about the grammar, right? So again we are doing one of the recap of the previous lecture. In previous lecture we have studied the types of grammar is A for alphabets, A double P L E, apple is the word, just understand, right? And apple is a healthy fruit. So this is what? This is sentence, right? This is what? Word and words. This is what? Sentence. This is what? Alphabet. And how we can write it? With the help of comma, full stop, and the 2, 3, 4, 5 line of that is called the paragraph, right? So this is all about the story of what? Grammar. So अभी अगर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया है तो हमें पूरा चैप्टर कितने में समझ में आया? इतने में समझ आया. टेल मी वन थिंग, अगर मैं पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में अगर ये समझाता जो मैं आज समझाया हूं तो आप क्या कहते मुझे? समझते? राइट. तो बिलीव इन योर अंडरस्टैंडिंग, बिलीव इन योर लॉजिक. अच्छी तरह से समझो, आप बिलीव करो. जो हम सीखते हैं उसको हम सीख सकते हैं. दिस इज द वेरी सिंपल बर्निंग एग्जाम्पल. यू आर ऑलरेडी एग्जाम्पल विद दैट कि हम पूरे चैप्टर को कितने में फिनिश कर लिए? 1, 2, 3, comma is the 4 and this paragraph stanza is the 5. So ये छोटा सा रेक्टेंगल में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, राइट? इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, और हम इंग्लिश में उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत. हम क्या
क्या सीखने आए यहाँ? क्या सीखने आए? जोर से बोलो। इंग्लिश? हाँ हाँ बोलो बोलो, इंग्लिश स्पीकिंग। जोर से बोलो ना, आवाज ही नहीं जा रहा। इंग्लिश स्पीकिंग। क्या सीखना है? इंग्लिश स्पीकिंग। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश नहीं सीखने आए, इंग्लिश तो लाइफ टाइम पढ़ना है। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जितना हमें जरूरत हमें उतना पढ़ना है। तो पहला चैप्टर था व्हाट इज ग्रामर। अभी दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप देखो अच्छी तरह से, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच? दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो वर्ड है, ये वर्ड से इटसेल्फ आपको समझ में आता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। पार्ट्स का अर्थ क्या होता है? भाग, हिस्सा। और स्पीच का अर्थ क्या होता है? बोलना। बोलने का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? जिसमें हमें पार्ट्स यानी हिस्सा, भाग, और इसमें हमें स्पीच के बारे में पता चले। तो यहां पे क्वेश्चंस होता है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हो सकता है ना? नहीं हो सकता? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो आंसर क्या है इसका बताइए। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग to their uses called parts of speech। आपको अच्छी तरह से समझना है, हम आगे जाकर के इतना नहीं लिखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, यानी शब्दों को अलग अलग डिवाइड किया गया है, बांटा गया है अलग अलग भागों में। अकॉर्डिंग टू, अनुसार, किसके अनुसार? उसके अपने उपयोग के अनुसार से उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इससे आपको समझ में आ गया। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके उपयोग के अनुसार से उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? कितने पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के? 8 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड नाउन, सेकेंड इज कॉल्ड प्रोनाउन, pronoun, third is called एडजेक्टिव, fourth is called, वर्ब, fifth is called, एडवर्ब, sixth is called, प्रीपोजिशन, seventh is called, कंजंक्शन, and eighth is called। इंटरजेक्शन। ना अगर हम इसको कुछ हिंदी में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में। नाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा कहते हैं, राइट? संज्ञा मतलब कोई नाम। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द से किसी नाम का पता चलता है। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम माने नाम के बदले में जो आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड, सर्व यानी जो नाम के बदले में आता है, राइट? एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया, क्रिया। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? संबंध सूचक, संबंध सूचक, अव्यय कहते हैं। कंजक्शन को क्या कहते हैं? संयोजक। और इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं? विस्मय बोधक। ठीक। अब समझना ये है कि हमने तो ये इसमें दिया है आपके नोट्स में, आपको जो मैंने वर्कशॉप मैनुअल बुक दिया है उसमें सब कुछ दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने जितना आपको दिया, जो इसमें बुक में दिया, ये आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, फ्लुएंट करने के लिए काफी है। अगर कोई कहता है कि इससे बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ते हो, फिर तो बचपन से लेकर आज तक ग्रामर पढ़ते ही आ रहे हैं। अभी हमें कितना ग्रामर पढ़ना है जिससे हमें इंग्लिश बोलना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोलता है यू आर वर्किंग इन महिंद्रा, ओके,
the people will tell you if you want to become a driver, better before learning driving, what you do, you become mechanic. अगर आप कहीं पे ड्राइविंग सीखने जाते हो तो 20 दिन 25 दिन 1 महीने में वो ड्राइविंग स्कूल वाला क्या करता है, आपको बिठाता है, ड्राइविंग सिखाने लगता है. और अगर आप उसको बोले देखो एक काम करो, ये ड्राइविंग से पहले मेरे को मैकेनिक बना दो, फिर मैं ड्राइविंग करूंगा, तो वो क्या बोलेगा, फिर ये जगह नहीं है आपके लिए. ड्राइविंग करने के लिए अपने को कितने चीज की जरूरत है, 5 चीज समझने की जरूरत है कि हमारा हैंड्स का जजमेंट क्या होगा, फुट का जजमेंट क्या होगा, क्लच क्या होगा, एक्सेलरेटर क्या होगा, ब्रेक क्या होगा, हमें जजमेंट क्या करना, प्रैक्टिस क्या करना है. जैसे हम बाइक अगर चलाना सीखना चाहते हैं, अगर कोई बोले बाइक सीखने से पहले हम मैकेनिक बन जाएंगे, तो क्या होगा, फिर वो सीख नहीं पाएगा. फिर मैकेनिक बनो, फिर जाकर के आप सीखो. लेकिन अगर बाइक चलाना सीखना है तो क्या सीखना है, क्लच लेना है, ब्रेक लेना है, लेफ्ट से गियर चेंज करना है, राइट से ब्रेक लगाना. आप कोई बोलेगा नहीं हम स्कूटी चलाते कुछ नहीं करते, हम ऐसे ऐसे करते रहते, राइट. सो दैट इज डिफरेंट. बट इफ यू वांट टू बिकम अ राइडर, इफ यू वांट टू बिकम अ ड्राइवर, what I suggest always, I always say, learn whatever things is available, right? Better to become first driver, then you become mechanic. Otherwise, if you want to open a garage, then you learn a mechanic to become a mechanic, right? So question says, अब ये अगर हम 8 पढ़ते हैं, ये अच्छी तरह से समझो, अगर हम ये 8 के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. जैसे नॉन है तो नॉन आगे जाके पढ़ेंगे तो नॉन के कितने पार्ट्स हो जाते हैं, 5 पार्ट्स हो जाते हैं. कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन. सो क्वेश्चन इज, जब हम प्रॉपर नॉन, अगर हम ये सिर्फ नॉन पढ़ने लगे, नॉन के बारे में पढ़े, तो आगे जाकर के अगर पढ़ते कि एग्जांपल देता हूँ समझने के, आगे हम नहीं जाते. ये नॉन सिर्फ 5 तरह का था, कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, राइट. तो हमें वो अब कॉमन नॉन पढ़ना है, आगे जाकर के आप जितना डिजाइन लगाना है घर में लगाओ, बट बेसिक क्या होना चाहिए, हमें जो चीज समझना है वो समझ लेना है, राइट. तो हम अभी क्या करेंगे, पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, राइट. सो नाउ वी आर कमिंग हियर फॉर द नाउन. अब ये मैं लिखता नहीं, आपके साथ ऑलरेडी आपके वर्कशॉप मैनुअल बुक में दिया हुआ है. व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेमिंग वर्ड. Noun is a word which identify the meaning of name of person, place, things, जिससे किसी नाम का पता चले. सोहन, मोहन, राम, गीता, सीता, योगेश, प्रथमेश, गंगा, यमुना, हिमालय, जिससे किसी नाम का पता चले उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. और अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम डेफिनेशन याद करके भी इंग्लिश नहीं आ जाएगा, हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि हमें कहाँ अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम ये पढ़ेंगे, नाउन, नाउन क्या है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, राइट. सिंपल, नाउन इज द नेमिंग वर्ड. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग योगेश इज अ बॉय, सो व्हाट इज द नाउन हियर, योगेश इज द नाउन, राइट. व्हाट इज नाउन, योगेश. तो हम ऐसे समझेंगे और आगे जाकर के हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1 बनाया तो ऐसे आप 5 बनाओगे, ऐसा 10 बनाओगे. यू गॉट द पॉइंट. और जहां जहां नाउन रहेगा उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, राइट. नाउ सेकंड इज व्हाट, second is what, pronoun. What is a pronoun? Pronoun is the word which comes instead of noun. जो noun के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, pronoun कहते हैं. अब जो noun के बदले में आता है उसे pronoun कहते हैं. मतलब क्या हो गया, he, she, it, this, that, etc. For example अगर मैं लिखता हूं योगेश, यहाँ पे क्या नाम था, अब योगेश के बदले में हम क्या लिखते हैं, he is a boy. तो अब ये क्या हो गया, he is what, pronoun. अब देखो आगे जाकर के जो पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा. अब जैसे योगेश है, योगेश क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया, और ही क्या हो गया यहाँ पे, pronoun हो गया. अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे बॉय भी है, तो अब बॉय क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन हो गया. अगर हम ये 5 पढ़ लेते तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन. गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन, राइट. ड्राइवर क्या हो गया, कॉमन नाउन. जिससे किसी एक ग्रुप का पता चले, तो बॉय मतलब बहुत सारे बॉय है ना. तो अगर सपोज हम यहाँ पे चूंकि योगेश है तो इसके लिए हमने बॉय लिखा है, और अगर यहाँ पे ज्यादा रहेगा तो बॉयज हो जाएगा ना. तो बॉयज जो है एक, ये भी एक नाउन का ही पार्ट है, राइट. यू गॉट इट. नाउ व्हाट इज द थर्ड, थर्ड इज व्हाट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. What is adjective?
An adjective is a word which qualify, which add the quality of noun and pronoun. An adjective is a word which qualify, which indicate the quality of a noun or pronoun. For example, if I'm writing here, योगेश के बदले में क्या आ गया था? ही आया था ना? योगेश के बदले में ही आ गया, और यहां पे रखता हूं ही इज अ गुड बॉय। अब क्या हो गया? योगेश के बदले में क्या आ गया? ही। ये क्या हो गया था? नाउन। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। इज अ गुड। गुड इज व्हाट? एडजेक्टिव। ये क्या है? योगेश कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो विशेषता क्या बता रहा है? क्या बता रहा है विशेषता? गुड। गुड मतलब अच्छा। यू गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज द फोर्थ वन? फोर्थ वन इज व्हाट? वर्ब। व्हाट इज द वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। सिंपल समझना। जिससे किसी काम करने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जिससे किसी काम करने का पता चले, खाना पीना, हंसना जाना, सोना, बोलना, लिखना, दौड़ना, पढ़ाई करना, राइट? जिससे किसी काम का पता चले उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और एक चीज और, चूंकि हम लोग हिंदी में इसको समझते हैं, जिसमें ना लगा हो उससे हम किसी काम का होना समझते हैं। जैसे जाना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, सोना, उठना, खाना, पीना, राइट? सो दीज ऑल आर द वर्ब, राइट? तो अब हम यहां पे लिखते हैं सिंपल। योगेश के बदले में क्या आ गया था? ही, राइट? योगेश के बदले में ही इज अ, he is, Yogesh is, he is running in the field. अब ये रन क्या हो गया? रन इज व्हाट? वर्ब। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना। यहां पे नाउन क्या हो गया था? योगेश। प्रोनाउन क्या हो गया था? ही। एडजेक्टिव क्या हो गया था? गुड। यहां पे रन, स्लीप, राइट? ईट, ये सब क्या हो गया? वर्ब हो गया, राइट? अभी पांचवा क्या है? An adverb is a word which qualify, which give the quality of even in the noun, pronoun and adjective. For example, जो ऐसा वर्ड हो जिससे नाउन और प्रोनाउन तो एक साथ हो गया, योगेश और ही, जो एडजेक्टिव का विशेषता बताए। अब एडजेक्टिव किसका विशेषता बता रहा था? नाउन का और प्रोनाउन का। और जो एडजेक्टिव का भी विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग हियर योगेश, अच्छी तरह से समझो। योगेश के बदले में क्या आ गया था? ही आ गया था। इज अ वेरी गुड। इससे पहले क्या था? सिर्फ क्या लगा हुआ था? गुड लगा हुआ था। अब इसमें जो वेरी लग गया वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ही रन स्लोली। LY स्लोली जो हो गया क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जो एडजेक्टिव का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। समझ में आया? अभी तक जो हमने 1 2 3 4 5 समझाया वो समझ में आया 100%? कोई डाउट है? जो लिखा हुआ है और यहाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर उतना लिखूंगा तो इतने में समझा पाऊंगा, राइट? तो आपको क्या करना है? आपको ये लिखना है। आपको जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको लिखना है, तो आई एम डैम श्योर आपने लिखा तो नहीं होगा। मैं सही हूँ या गलत हूँ? कौन सही है, मैं या आप? हाँ, मुझे पता है बच्चे लिखते नहीं, लेकिन अगर आप लिखोगे तो क्या होगा जिंदगी में? चारों चीज एक साथ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? लिखने से हमें क्या मिलता है? जब हम लिखते हैं तो बोलते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, तो आपको एवरीथिंग मिलता है। कुछ दिनों के लिए अपन कितने घंटे के बाद मिलते हैं? ऑल्टरनेट डेज अपना क्लास है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हम मिलते हैं 48 आवर्स के बाद। कितने देर के लिए? 2 घंटे के लिए मिलते हैं। तो 48 आवर्स में अपने लिए कितना मिनट निकालना है आपको? हमने आपको बोला था 24 घंटे में 24 मिनट निकालना है, तो कम से कम आपको 48 मिनट्स निकालना है। 48 घंटे में कितना? 48 मिनट। जितना घंटे का गैप है हमारे और आपके बीच में, उतना मिनट कम से कम आप निकालो। फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? मैं जो भी आपको सिखा रहा हूं उसके साथ साथ चलने में मजा आएगा। नहीं तो क्या होगा पता है? हम हर एक दिन एक चैप्टर करते जाएंगे, ठीक है? और आप
आप सोचोगे नहीं सर जो बता रहे हो तो समझ में आ रहा है और लगता आ जाएगा, लेकिन गाना किसको गाना है? गाना किसको गाना है? आपको गाना है। तो रियाज किसको करना है? आपको करना है। बोलना किसको है? आपको है। तो ये जो मैं समझा रहा हूं ये सिर्फ आपके अंदर में जो वो जो मटेरियल है उसको क्या कर रहा हूं? ब्रेक कर रहा हूं, पत्थर तोड़ने का काम क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? ऐसा हैमरिंग कर रहा हूं। और हर एक हैमरिंग में क्या हो रहा है? हैमर का क्या होता है? मटेरियल को का जो अणु है, उसका जो मटेरियल है प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज को क्या करने का? ब्रेक करने का गुण है। तो मैं क्या कर रहा हूं? आपके जो प्रॉपर्टीज ऐसे बंधे हुए हैं उसको ऐसे हैमरिंग कर करके क्या कर रहा हूं? ब्रेक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी ब्रिलियंट। वो प्रॉपर्टीज है, कितना अच्छा वर्ड है ना, वो प्रॉपर्टीज को ब्रेक कर रहा हूं, राइट? ओके, एनीवे, तो हमारे ये पढ़ाने से क्या आपको लगता है इंग्लिश आ जाएगा? इंग्लिश बोलना आ जाएगा? यस सर, श्योर। वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। छठा क्या है? छठा क्या है? प्रीपोजिशन, राइट? देखो प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध सूचक। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच गिव्स द रिलेशन बिटवीन वन वर्ड टू अनदर वर्ड, वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। अब प्रीपोजिशन क्या हो जाता है? देखो, इन, ऑन, एट, अपॉन, राइट, एक्सेट्रा, ये बहुत सारा है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग हेयर योगेश he is running field, ये सही लग रहा है आपको? क्या आना चाहिए? रनिंग इन द फील्ड। अब द जो है आर्टिकल है, इन क्या है? प्रीपोजिशन। यही आपको मुझे समझाना है। इन, ऑन, एट, राइट? यू अंडरस्टैंड? यस। थोड़ा बोर्ड छोटा है तो हम छोटे में ये मोटा अक्षर नहीं लिख के छोटा अक्षर लिख के समझना चाहते हैं। और हम जो समझना चाहते हैं वो हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ और आप मेरे हाँ में हाँ लगा रहे हो और फिर आप भी आगे बढ़ते जा रहे हो, मैं भी आगे बढ़ते जा रहा हूँ। ये सिर्फ हम 1 2 3 4 5 6 और क्या रह गया? 2, 7 और 8। 7 इज व्हाट? 7 इज व्हाट? कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? Conjunction is a word which add one word to another word. Which add, एक word से दूसरे word को add करता है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को add करता है। For example, योगेश and प्रथमेश। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, सिर्फ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं योगेश प्रथमेश आर गुड फ्रेंड, सही है ये? Yogesh and what is that? Yogesh and Prathamesh are good friend, right? Yes. And और but ये सब क्या हो गया? Conjunction हो गया, right? And what is the last one is the interjection. Which gives the feeling of sudden feeling. अगर कोई आपको sudden feeling देता है उसे क्या कहते हैं? Interjection कहते हैं. And interjection is a word which gives the sudden feeling. Oh, hip hip hooray, we won the match. Oh, he died, right? So जो sudden feeling दे उसको क्या कहते हैं? Interjection कहते हैं। और इसका जो sign of क्या होता है? Exclamation होता है, right? This is the sign of exclamation, right? So you understand? For example, if I am writing, he won the एक्सक्लामेशन देने से इंटरजेक्शन हो जाते हैं, राइट? एक बार मैं रिकैप करता हूं आपको। व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इनसाइड ऑफ नाउन। व्हाट इज द एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच गिव द क्वालिटी ऑफ द नाउन इन प्रोनाउन। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ब जिससे किसी काम करने का पता चले। व्हाट इज द एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई द और which give the quality of an adjective, right? What is a preposition? A preposition is a word which give the relation between two words and two sentences. What is a conjunction? A conjunction is a word which add one word to another word. What is an interjection? An interjection is a word which give the sudden feeling. अब देखो अपने को कितना पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। अब इसको एलेबरेट करके पढ़ोगे तो क्या होगा? अब नाउन के 5 पार्ट हो जाते हैं, वो पढ़ने में 5 दिन लग जाएगा।
प्रोनाउन के 8 पार्ट होते हैं तो वो भी पढ़ने में 8 दिन लग जाएगा। एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के पार्ट्स हैं अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब पे भी पार्ट होते, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसमें टाइम लग जाएगा। एडवर्ब है, उसके पार्ट है। प्रीपोजिशन हर एक का अलग अलग यूज है, इन, ऑन, एट, ऐसा 50+ प्रीपोजिशन है जो हमें सीखना चाहिए। कंजंक्शन है इन, ऑन, एट, ये प्रीपोजिशन है। उसी तरह से एंड और बट, ये क्या है? कंजंक्शन है। तो हमें ये इतना एलेबरेशन के बदले में क्या करना है, हमें ये 8 को अच्छी तरह से समझ लेना है और 8 के ऊपर में कम से कम एक के ऊपर में कितने वर्ड्स बनाने, सेंटेंसेस बनाने, 10 बनाने और उसको अंडरलाइन करना, जैसे हमने कैसे अंडरलाइन करके आए हैं, right? So what we'll do after this, you can write it little as I have written in the code word. Similarly, you write it, okay? And later on we'll go for the making a sentences, right?